करो, फोन पे करके रिसिप्ट है ना, तो आपको 10 नहीं और एक नंबर है मेरा व्हाट्सएप नंबर। वेरी गुड। और एक नंबर एनएसएस क्लास 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 సో ఈరోజు एनएसएस डे జరుపుకోవడం జరుగుతుంది। आज हम एनएसएस डे मना रहे। एक्चुअली एनएसएस डे 24 सितंबर को रहता, मगर अपने को कल से छुट्टियां है बोल के आज एनएसएस डे मना रहे। इस मौके पे अपने चीफ गेस्ट एनएसएस चेयरपर्सन प्रिंसिपल सर प्रोफेसर असलम फारूकी साहब को स्टेज पे आने का दावत देता हूँ। Next, I would like to invite our college vice principal, Dr. Lachaya sir, onto the stage. Senior faculty, HOD of English department, Dr. Narhari Murthy sir. And I would like to invite Srimati Preeti Madam, NSS2 Program Officer, onto the stage. And I would like to invite the Muzaffar Ali sir, NSS 3 Unit Program Officer, onto the stage. And I would like to invite all the faculty members to this program. टाइम ज़्यादा नहीं है, उस वास्ते शॉर्टकट में ये प्रोग्राम कर रहे, कुछ मत समझना। ये एनएसएस डे, एनएसएस అంటే నేషనల్ సర్వీస్ స్కీమ్। ఈ ఎన్ఎస్ఎస్ అనేది నేషనల్ లెవెల్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ సామాజిక కార్యక్రమంగా కొనసాగుతుంది। 1969 నుంచి ఈ ఎన్ఎస్ఎస్ కార్యక్రమాన్ని మనం కొనసాగిస్తున్నాం। అయితే మన కళాశాలలో 1993 నుంచి ఎన్ఎస్ఎస్ యూనిట్స్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయినాయి। అప్పటి నుంచి కూడా ఎన్ఎస్ఎస్ యూనిట్ 1, యూనిట్ 2, యూనిట్ 3 3 యూనిట్స్ ఇక్కడనే ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది। తర్వాత ఎన్ఎస్ఎస్ ఎందుకు మనం అందులో జాయిన్ కావాలి అంటే ఎన్ఎస్ఎస్ యొక్క స్లోగన్ ఏమంటదంటే నాట్ మీ బట్ యు, నా కోసం కాదు మీ కోసం అనేటువంటి మోటో తోటి ఈ ఎన్ఎస్ఎస్ కార్యక్రమాన్ని మనం నిర్వహిస్తూ ఉంటాం। అంటే మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు, జనరల్గా ఎన్ఎస్ఎస్ అనేది ఒక సామాజిక కార్యక్రమం। ये सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम है। क्यों बोले तो अपन 365 डेज अपन के वास्ते अपन ही जीते, मगर उसमें से एक 1 वीक सोशल सर्विस के वास्ते अपन देना बोल के ये एनएसएस मोटो है। उस वास्ते आप सब लोग इसमें शामिल होना बोल के मेरा ख्वाहिश है, आप सब शामिल होते बोल के मैं मान लूं। और first I would like to invite Gayatri, become second year. एनएसएस वॉलंटियर जो है वो खड़े होने को बोल रहे प्रिंसिपल साहब। एनएसएस में है अभी, खड़े हो जाइए। दूसरों को मालूम होता कि हमारे कॉलेज में एनएसएस सेकंड ईयर फाइनल ईयर वाला जो है वो उतना है। आप नाम और एनएसएस में ఎవరెవరు ఉన్నారు? एनएसएस लेवल లో వాళ్ళందరూ లేచి ఉన్నారు। ఇంకో सेकंड ईयर और फाइनल ईयर पूरे लोग रहते हैं उसमें एनएसएस में। ये सब
गायत्री दा అందరికీ నమస్కారం. జీవిత గౌరవనీయులైన కళాశాల ప్రధానాచార్యుల గారికి మరియు ఉప ప్రధానాచార్యుల గారికి, అధ్యాపకులకి మరియు విద్యార్థులకు నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అలాగే జాతీయ సేవా పథకం దినోత్సవం సందర్భంగా వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా నమస్కారాలు. ఎక్కడైతే ఎన్ఎస్ఎస్ డే అనేది 24కి, కాకపోతే మనకి సెలవులునే కాబట్టి ఈరోజు జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. మహాత్మా గాంధీ 100వ జయంతి సందర్భంగా 1969లో ఈ పథకం ప్రారంభమైంది. అప్పటి నుండి మనం సమాజ సేవలో పాల్గొంటూ మన చదువుతో పాటు సమాజ అవసరాలను అర్థం చేసుకుంటూ సమస్యల పరిష్కారంలో భాగమవుతున్నాం. ఎన్ఎస్ఎస్ ద్వారా మనం సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోగలగాలి, సామాజిక బాధ్యతను పెంపొందించుకోవాలి, నాయకత్వ లక్షణాలను పెంపొందించుకోవాలి, వ్యక్తిగత అభివృద్ధిని సాధించగలగాలి. అంటే మనం మన చుట్టూ ఉన్న సమాజంలోని సమస్యలను, అవసరాలను గుర్తించగలగాలి. పౌరులుగా మన బాధ్యతలను గుర్తించి సమాజం పట్ల ఒక సానుకూల దృక్పథాన్ని అలవర్చుకోవాలి. సేవ చేసే ప్రక్రియలో నాయకత్వ లక్షణాలు మనకు అలవడబడాలి. సమకాలీన సమస్యలపై అవగాహన, సామాజిక సేవ ద్వారా నైపుణ్యాలను పెంచుకోవాలి. భారత ప్రభుత్వం యువజన వ్యవహారాలు మరియు క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖ ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తుంది. ఎన్ఎస్ఎస్ అనేది కేవలం ఒక కార్యక్రమం మాత్రమే కాదు. మనం సమాజానికి సేవ చేయమని ప్రోత్సహించే ఒక అద్భుతమైన వేదిక. విద్యార్థుల సమాజానికి సేవ చేయమని ప్రోత్సహించే ఒక అద్భుతమైన వేదిక. ఈ రోజు ఎన్ఎస్ఎస్ దినోత్సవం సందర్భంగా మనం అందరం ఎన్ఎస్ఎస్ స్ఫూర్తిని స్వీకరించి సమాజానికి సేవ చేయడానికి ముందుకు వద్దామని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. ఎన్ఎస్ఎస్ అంటే ఏంటి, ఎన్ఎస్ఎస్ యొక్క ప్రయోజనాలు ఏంటి అనే అంశాల గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు. నెక్స్ట్ I would like to invite Samir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respected principal sir, teachers, and my dear friends, as we are celebrating the NSS Day on the 24th September 1969, today we are celebrating NSS Day, a day dedicated to the recognizing the invaluable contribution of the National Service Scheme to our society and the development of our youth. As the NSS Day, established in 1969, is more than just a program. It's a way of life, a philosophy deeply inspired by the teaching of Mahatma Gandhi, our father of the nation. His motto, "Not me, but you," embodies the essence of the selfless service, urging us to prioritize as the welfare of the community over our own. Through the NSS, students like us get a unique opportunity to get directly with the community. We learn about the seeds and the problems as we forgot together to find practical solutions. This education through service help us to grow not just physically but also emotionally and socially. So this NSS Day let us recommended ourselves to the noble ideal. Let's continue to embrace the spiritual of the service to understand and serve our communities and to build a stronger, new, more integrated India for all. Thank you. Thank you very much. Next to Rosa Laimer. आली जनाब प्रिंसिपल सर, अजीज लेक्चरर्स और मेरे प्यारे साथियों, नासा जो फिजा है, नासा जो तरन्नो, नासा जो फिजा है, नासा जो तरन्नो, हाजिर यहाँ जलसे को अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे खुशी है कि मैं आपके सामने नेशनल सर्विस स्कीम के मौजू पर चंद बातें पेश करने जा रही हूँ। एनएसएस एक ऐसी तंजीम है जो नौजवानों को समाजी खिदमत और खौफ की तामीर के लिए कामों में शामिल करती है। इसका मकसद सिर्फ तालीम हासिल करना नहीं, बल्कि तालीम के साथ साथ माशरे की खिदमत करना, अफवाह के मसाइल को समझना और इनके हल के लिए अपनी कोशिश करना है। एनएसएस के तहत तलबा को मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका मिलता है।
देहात में जाकर अवाम को तालीम और सेहत की अहमियत से आगाह करना। ये तमाम सरगर्मियां नौजवानों के अंदर कौमी यकजहती, कुर्बानियां, खिदमत खल्क और जिम्मेदारी का जज्बा पैदा करती है। एनएसएस का मकसद सिर्फ दूसरों की खिदमत करना ही नहीं बल्कि तलबा को अच्छा शहरी और बेहतर इंसान बनाना भी है। मोहतरम सामईन, आज के ज़माने में हमारे मुल्क को ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जो खुद मर्जी से ऊपर उठकर कौम और इंसानियत की भलाई के लिए काम करे। एनएसएस हमें ये दुरूस देता है कि ना सिर्फ अपने लिए जियो बल्कि दूसरों के लिए भी जियो। आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि हम सबको एनएसएस जैसी स्कीम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि हम अपने मुल्क और माशरे और इंसानियत की खिदमत कर सके। इतना कहते हुए मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम एक शेर के साथ करना चाहूँगी। तवज्जो फरमाइए। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत कौम की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत कौम की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। थैंक यू रोजा रहमत जी। नेक्स्ट कलीम बीएससी फर्स्ट ईयर से सॉन्ग गाने के वास्ते आपके आ जाए। तलवारों पे सलवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा जहाँ जान मेरी ये रहे न रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, पीता न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर में तू हंसती रहे, मेरी आँख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुकड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आग पे दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, कितनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे कलियां मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आग पे दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत ही अच्छा गाया आप गाना। ये एनएसएस स्पेशल कैंप्स इससे पहले पुत्तूर और दिल्ली पुत्तूर के इससे पहले लास्ट ईयर करे थे अपन, तो 7 डेज वही रह के वो कैंप करे। और लास्ट कैंप अपने को कृष्णापुर बिडेकन्ने 2 गाँव में एनएसएस यूनिट 1 यूनिट 3 2 भी इधर करे। और होती भी में गर्ल्स कैंप था। इस साल भी ये नेक्स्ट मंथ 10 से अपन सोच रहे एनएसएस स्पेशल कैंप रखने के वास्ते। सो सब लोग आने के वास्ते रेडी रहना।
और एनएसएस के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मैं अब एनएसएस 3 यूनिट प्रोग्राम ऑफिसर मुजफ्फर अली साहब को दावत देता हूँ, उन्हें आके उनका स्पीच देने का। Respected Principal Sir, Vice Principal Sir, Head of the Department of English, Murthy Sir, NSS Program Officers and मेरे कलीग तमाम तुलबा तालिबात, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो एक्चुअली जो एनएसएस डे है वो 24 सितंबर है। हॉलीडे की वजह से बिफोर हम इसको सेलिब्रेट करें क्योंकि आज लास्ट वर्किंग डे है। तो देखिए सबसे पहले एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम, उसका एक मोटो है नॉट मी बट यू, क्योंकि हम एज ए इंसान साल में 365 दिन हम हमारी जिंदगी के लिए अपने लिए सर्च करते हैं, लेकिन एनएसएस का मोटा है नॉट मी बट यू, हमारे लिए नहीं बल्कि हम और के लिए। तो हम हमारे लिए बल्कि हम समाज के लिए जीना है। हम कौन है? हम एज ए स्टूडेंट्स हैं। तो हमारा एक काम बनता कि हम कम से कम एक चंद दिन, हमारे जो चंद दिन हमारे समाज के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, इस देश की बेहतरी के लिए हमको चंद दिन देके हमारी जिंदगी के, हमारे समाज को ऊपर लाना है, समाज को डेवलप करना है। क्योंकि हम नौजवान हैं, हम यूथ हैं, आप लोग सारे यूथ हैं। क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा कि सबसे पहले जो तरक्की करना है तो तरक्की कहाँ पे होना, हिंदुस्तान तरक्की करेगा सबसे पहले कहाँ पे करेगा? गाँव के अंदर करेगा। तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैदराबाद के अंदर एनएसएस 3 यूनिट्स हैं, 2 बॉयज यूनिट है, 1 गर्ल्स यूनिट है। तो हर यूनिट्स के अंदर 50 स्टूडेंट्स को कैंप में जाना है। एनएसएस कैंप के अंदर तो हम एक विलेज अडॉप्ट करेंगे, एक गांव को लेना है। गांव को लेने के बाद गांव के अंदर वहाँ के प्रॉब्लम्स क्या है उसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए बाद लोग के जहन में ये रहता, बाद लोग की बात क्या आती है, एनएसएस वाले तो झाड़ने के लिए जाते, साफ सफाई के लिए जाते। ये सोच गलत है आपकी, ये सोच आपकी गलत है। ये हम लोगों को एक मैसेज पहुंचाने के लिए हम कैंप में जाते हैं, एक पैगाम देने के लिए, अपने अंदर कुछ क्वालिटीज को डेवलपमेंट करने के लिए, लीडरशिप क्वालिटीज इनहैंस करने के लिए हम एनएसएस कैंप लगा। क्योंकि देखिए जहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, हर एक समाज, हर एक घर अलग अलग घराने से ताल्लुक रखने वाले हैं। कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, हर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले आप लोग हैं। लेकिन जब हम एनएसएस में जाने के बाद सब लोग मिलके एक साथ मिलजुल के 7 डेज स्टे करना रहेगा हमको। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हमदर्दी, एकजुटती, मिलाप, आपस में मिलाप, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, डिसिप्लिन, ये सारे चीजें हमको सीखने के लिए आए। तो यहाँ पे देखिए वहाँ पे जब हमको सीखना है तो हर चीज का एक वक्त मुखर्रर रहता, वक्त के हिसाब से सारी चीजें हमको करना है। क्योंकि देखिए हमारा घर है, हम घर में जिंदगी में हमारे घरेलू औकात के मुताबिक हम जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन क्या है, एक कैंप में एक वक्त के हिसाब से हमको जिंदगी गुजारना है। क्योंकि एक 7 डेज के अंदर हमारे में थोड़ी और थोड़ी कुछ तब्दीली लाना है। वो तब्दीली जो भी आपको एनएसएस कैंप के अंदर आ रही, वो तब्दीली को आप अपनी पर्सनल लाइफ में लाना है। तो पर्सनल लाइफ में लेंगे तो आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो लाइफ स्टाइल चेंज होती है। क्योंकि देखिए अब मैं एज ए स्टूडेंट इसी कॉलेज के अंदर जिस में था, मैं 3 साल एनएसएस एज ए वॉलंटियर 3 साल एनएसएस कैंप करा। फिर उसके बाद मैं 2019 से एज ए प्रोग्राम ऑफिसर हूँ, यहाँ पे 2013 में आया। 19 से पहले भी 13 से मैं एवरी ईयर 7 डेज कैंप में रहता था। क्योंकि देखिए जो कैंप के अंदर आपको देश का जज्बा, कौम का जज्बा, समाज के लिए भलाई करना है, तो ये 7 डेज आपको देना रहेगा। तो आप 7 डेज जब कौम के लिए काम करेंगे तो ये फ्यूचर के अंदर ये आपकी कामयाबी की ज़ामिन है।
क्योंकि इसके अंदर अपने आप में एक मोहब्बत भाईचारगी और दूसरों के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने का मौका मिलता और वो सलाहियत अपने आप में आती। तो क्योंकि देखिए हर एक काम, डिसिप्लिन, टाइमिंग, ये सारी चीजें होता है। तो इंशाल्लाह अभी से रामू सर जोड़ के अक्टूबर 10 से हम एनएसएस कैंप डालने वाले हैं। तो आप लोग बीकॉम के लोग तो सारे आने वाले हैं 22 और दूसरे भी बीएससी बीए है, क्योंकि 7 दिन साल में हमारे लेवल के 7 दिन कौम के लिए, समाज के लिए, माशरे के लिए हम एज ए स्टूडेंट हैं। हम एक आवाम को पैगाम देना है, एक हम खुद के लिए जीना है, दूसरों का दर्द समझना है। वो समझ के आप लोग एनएसएस में इनरोल कीजिए। मेरे पास बीकॉम सेकेंड ईयर के, फाइनल ईयर और सेकेंड ईयर के सारे लोग इनरोलमेंट है। अभी जो फर्स्ट ईयर से आप लोग का भी इंशाल्लाह इनरोलमेंट करूंगा मैं। जैसे ही कॉलेज रीओपन होगा 6 क्लास को 6 डे को मेरे पास आपके लिए सारे फॉर्म्स है। ऑलरेडी मैं आपको कह चुका हूँ कि आप एक फोटो लाना है, एनएसएस इनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करना है और इस तरह से अब एज ए आप यूथ, नौजवान अफराद कौम के लिए, समाज के लिए कुछ काम करें। और इसी तरह से अभी ये जो 3 साल का फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो टाइम है आपको, ये 3 साल की जो आपकी मेहनत है कौम को काम करने के लिए, अभी से आपको याद है तो जिंदगी में आने वाले दिनों में ये सारी चीजें आपको पर्सनल लाइफ में लेना है, इसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू सो मच सर, मुजफ्फर सर। आप देखते हैं एनएसएस वॉलंटियर के जैसा काम करे सर, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर के जैसा काम कर रहे और कैसा रहते हैं, वो फंक्शन रहते और डिसिप्लिन रहते, लीडरशिप क्वालिटीज आ गए। ऐसा एनएसएस प्रोग्राम अपन करें तो ये पूरे अपन अक्वायर कर सकते। ऐसा एक रोल मॉडल के जैसा मुजफ्फर सर है। थैंक यू वेरी मच सर। और एक चीज क्या है, एनएसएस में होते काम करने वाले हैं जैसा एक అదొక పేరు పడిపోయింది अंदर इवन पलटूर कहते गांव में गए तो सब लोग एनएसएस वाले आए तो काम करने वाले हैं, झाड़ू मारते, मोरिया साफ करते, ऐसा वो रख लेते हो माइंड में। हाँ, बयान रख लेते हो, ख्याल रख लेते हो। वैसा नहीं रख लेना, क्योंकि तो एनएसएस जो वॉलंटियर्स रहते हैं, प्रोग्राम अफसर रहते हैं, वो दिखाते हैं ऐसा नहीं रहना, ऐसा रहना, ऐसा करना, वो बोलते हो लोग, पर काम करने वाले नहीं है। उन्हें पूरा उनका जिंदगी अलग रहता, जस्ट वो बोलने के वास्ते आते हो, माइंड में नहीं रख देते हो। एनएसएस वाले आए हो तो ये साफ का सफाई करने वाले आए जैसा फील होते हो, ऐसा नहीं फील होना। आपको ऐसा उनको मैसेज देना बाकी लोगों को। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रीति मैडम, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर। Respected principal sir, vice principal sir, Murthy sir, in unit 2, unit 1 and 3 program officers, and my colleagues, and dear students. Good morning to everyone. Today we are celebrating NSS Day, National Service Scheme. Are you a responsible student? No, nobody is responsible. Yes, I know. Yes. 3-4 days से हम NSS activities कर रहे हैं, मतलब we are cleaning. Yes. పై నుంచి చూస్తున్నారు, కింద నుంచి చూస్తున్నారు, బట్ నోబడీ ఈస్ కమింగ్. ఏ అది మా పనియా? విచ్ ఈస్ వెరీ చిచి. నేను ఆ పని చేస్తున్నా, నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా, నేను ఈ పని చేస్తున్నా. ఆర్ యూ రెస్పాన్సిబుల్ ఆర్ నాట్? పోనీ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అవసరం లేదు, కాలేజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయా లేవా మీకు? మీరందరూ చాలా బ్యాడ్ స్టూడెంట్స్. మీరు ఏమని అనుకోండి, నన్ను తిట్టుకున్నా మంచిదే. 2 days से मैं क्लीनिंग कर रहे हैं. प्लास्टिक ग्लासेस, प्लास्टिक कप्स, यूज्ड पेन्स एंड रफ पेपर्स, चॉकलेट वेफर्स, बिस्किट वेफर्स, ये पूरा किस में डाल रहे तुम लोग? डस्टबिन में. तुम लोग पढ़ रहे ना? हाँ, कुछ भी कॉमन सेंस नहीं है तुम लोगों को? वो प्लांटर्स आर लुकिंग लाइक गार्बेज.
और डस्टबिन डेली में पानी डालते, डेली उसमें रफ पेपर्स, बिस्किट वेफर्स, चॉकलेट वेफर्स, पेन्स, मेहंदी कोन्स, yes amma, shame on you, really, and sanitary napkins in garbage kaadu, in plants. Yesterday I made nikale wo, even attendants also not able to take that, made nikale sanitary napkins. Shame on you. And boys, तुम लोग जाते every time washroom को जाते, पानी डालने के लिए नहीं, तुम लोग को is it you are responsible or not? Navakandi, which is navve vishayam kaadu. You are a responsible student, then you have to boil the water, which is very serious matter. और एक को तुम लोग ऐसा ट्रबल कैसे करते? तुम लोग कुछ करे तो खराब करो, तुम लोग कुछ भी नहीं करते फिर खराब करते, हम लोग कैसे करते हैं उधर? Sir, every time this is a very big problem for us. Then these people are laughing. లేదు సార్, వీళ్ళని ఎవరు కరెక్ట్ చేయాలి? Yes. మీ అమ్మ చెప్తే కరెక్ట్ చేస్తారా? నేను మీ అమ్మనే అనుకోండి. Yes, I am your mother. Is it correct? Be like a good student. Please, I am requesting you all. నాకేం కోపం లేదు మీ మీద. At least మీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మీరు తెలుసుకోకపోతే రేపు సోషల్ సర్వీస్ ఏం చేస్తారు? మీరు సోషల్ సర్వీస్ కూడా చేయనవసరం లేదు. అట్లీస్ట్ కాలేజ్ నీట్ గా ఒకసారి పైన చూడండి. ఎన్ని సంవత్సరాల క్లాస్ ఇవన్నీ? You don't have responsibility to maintain clean and green in our college? Avana kadama? Everyone is spoiling plants. वो क्या करे तुम लोगों को? जाते ऐसा बोल मारते थे, ऐसा नवकंडी, सिग्गु पड़ंडी, नवकंडी. ఇది చేసి నాకు చాలా బాధగా ఉంది సార్, నిజం చెప్తున్నా. నేను నేను లెక్చరర్ అయినా కానీ ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్గా పనిచేస్తున్నా సార్. నేను ఈవెన్ అటెండర్స్ చెత్త ఎత్తమంటే కూడా చేత కావట్లేదు వాళ్ళకి, దీనికి డబ్బులు ఇవ్వాలంట. మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదమ్మా. ఎంత టైం వీఆర్ స్పెండింగ్ ఇన్ కాలేజ్, క్లీన్ ఉంచుకోవాలి కదా. మన ఇల్లు అయితే ఇట్లా ఉంచుకుంటామా? నేను ఎవరిని కోపం చేయట్లేదమ్మా. ట్రై టు బి ఏ గుడ్ స్టూడెంట్ అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ స్టూడెంట్. చదువు కంటే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిసిప్లిన్. సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ రాకపోతే చదువు కూడా రాదు. ఎవ్రీ టైం మేడం కోపం చేస్తుంది అనుకుంటారు కానీ ఒకరు చేసే వాళ్ళకు మీరు సపోర్ట్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు, పార్ట్ చేయకండి. అట్లీస్ట్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ ఆల్. బాయ్స్ కూడా పెయింట్ మొత్తం గీకేయడం ఏం పనులు బాగున్నాయి? మీ ఇళ్ళల్లో ఇట్లనే చేస్తూ ఊరుకుంటారా? నేను చాలా ఎఫర్ట్స్, నా టైం అండ్ చాలా నా క్రియేటివిటీ మొత్తం ఉపయోగించి చేసిన. యూ పీపుల్ ఆర్ స్పాయిలింగ్. నెక్స్ట్ టైం ఇది రిపీట్ కావద్దు దయచేసి. ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్. ఆర్డర్ కూడా చేస్తలేదు, అర్థం చేసుకోండి. వాష్రూమ్స్ నీట్గా పెట్టుకోండి, క్లాస్ రూమ్స్ నీట్గా పెట్టుకోండి. ఎన్ఎస్ఎస్ అంటే పోనీ సమాజానికి మనం ఏం చేయవలసిన లేదు. అట్లీస్ట్ మనం చదువుకున్న 3 సంవత్సరాలు మన కాలేజీని బాగు చేసుకుంటే చాలు. అదే మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎస్, మన తర్వాత ఇంకొక 10 తరాలు చదువుకోవాలి ఇక్కడ. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఏది పాడు చేయకండి. అర్థం చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నా. అండ్ వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ఎ క్యాంప్ ఇన్ అక్టోబర్ ఓన్లీ ఫర్ గర్ల్స్. Interested people have no demand. Boys camp. They only for girls camp, sir. Auntie, now girls camp. Next we are planning for girls camp. Amma, try to cooperate with me. నేను నేర్పించడానికి ఐఎమ్ ఆల్వేస్ రెడీ విత్ యూ ఆల్. మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోండి దయచేసి. మాట ఇవ్వండి నాకు అందరూ. మాట ఇవ్వండి అందరూ. వాదా దేదో మేరేకో. क्या जोहा मैडम आए मेरे को हेल्प करने के लिए. हाँ, మీరు కాదమ్మా
आपके ऊपर गुस्सा नहीं है, वो बहुत उनका टाइम पूरा स्पेंड करते उसमें, गार्डनिंग में, वो ट्री प्लांटेशन में पूरा ना उनका टाइम 2:30 से स्टार्ट करे तो 4:30 तो वो वही काम करते हैं। हर एक दिन वाटर मारते वो लोग, ये पूरा करे जब तकलीफ होता, किसी को तकलीफ होता है तकलीफ वो एक्सप्रेस करे होता है। सब लोग उनको वादा करो अब से ट्रीज को सेफ रखते और गार्डन को सेफ रखते और नीट एंड ग्रीन रखते कॉलेज को। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంకా లెక్చరర్స్ నాకు దయచేసి వాళ్ళు మాట్లాడాలనుకుంటే ఎన్ఎస్ఎస్ సంబంధించి మాట్లాడవచ్చు. నారా సార్ నెక్స్ట్ హెచ్ఓడి ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఐకేఎస్సి కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ నరామూర్తి సార్ గారిని మాట్లాడాల్సిన प्रीति मैडम का आपने दर्द समझा है, दिल का दर्द समझा है ना। एक इंसान को जो मतलब सच्चाई से जो काम करता है उसको कितना दर्द पहुंचता है ना। So are you ready to give her the word that you will maintain the campus clean? So boys and girls, let us give her word. Boys and girls, I request you to stand up. Stand up. Yeah, extend your right hand forward. Right hand, जिसके पास hand है भाई लास्ट वाले आप लोग मैं चेहरे का इंसान हूँ, मैं सब कुछ दिखता है। राइट हैंड आगे। आज से पूरा कॉलेज का कैंपस एरिया नीट एंड क्लीन रखूंगा। कचरा पूरा उधर इधर क्लासरूम में बाहर नहीं फेंकूंगा। मेरी खुद का हाइजीन, सराउंडिंग्स का हाइजीन मेंटेन रखूंगा। ये मेरा वादा है। आज से ये वादा को मैं 100% निभाऊंगा। बैठिए। भाई आप लोगों ने वादा किया, देखो ये वादा आपको मतलब खाली 3 साल ही नहीं पूरा जिंदगी भर निभाना पड़ेगा। जस्ट भाई ये कॉलेज कैंपस से सुनो, ये कॉलेज कैंपस से मैं डेली या मतलब एनजीओ कॉलोनी की तरफ जाता हूँ। जाते समय इतना प्लास्टिक, इतना कचरा, पूरा जहीराबाद मुझे ऐसा लगता है जैसा मतलब पूरा जितना शहर से देखा हूँ उसमें पूरा डर्टीएस्ट शहर है। कहीं भी कूड़ा फेंकते हैं, कहीं प्लास्टिक फेंक देते हैं। आप दूसरे शहर में जाके देखिए, इंदौर भारत का सबसे क्लीनलीस्ट सिटी इंदौर है, तो नेक्स्ट सिटी जहीराबाद होना चाहिए क्योंकि आपने वादा किया। जलालुद्दीन रूमी एक बात बोलते हैं, सुनो, उर्दू पोएट जलालुद्दीन रूमी एक बात बोलते हैं कि इंसान का जिंदगी ऐसा होना चाहिए जैसा सूरज का हो, जैसा एक नदी का हो। बहुत ब्यूटीफुल बोलता है रूमी का, वो सुन लेना कभी, यूट्यूब में इंटरनेट में पढ़ लेना। सूरज के लिए ऐसे क्यों ऐसा बोलता है कि सूरज जो है सबके ऊपर उसका रोशनी डालता है। ये नहीं देखता है कि वो हिंदू है, मुसलमान है या क्रिश्चियन है या एससी है, वो बीसी है, ओसी, ये नहीं देखता। सूरज का रोशनी सबके ऊपर रहता है। नदी के पास आप पानी पीने जाओगे तो नदी आपसे कुछ भी नहीं पूछता है कि आप मतलब रिच है या पुअर है या मेल है या फीमेल है। इट डजंट आस्क। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ सर्विस टू ह्यूमैनिटी। एनएसएस के दिन, एनएसएस डे के दिन ये आप मतलब आपके दिल में बिठाना कि मुझे जिंदगी एक सूरज के जैसा, एक नदी के जैसा जीना है।
क्योंकि आपके अंदर अगर सर्विस मोटो नहीं है, आप कितना भी पूजा कर दीजिए, कितना भी मतलब नमाज पढ़ लीजिए, कितना भी मतलब चर्च में जाके सर्विस कर लीजिए, और उससे कोई आपको मतलब नहीं मिलेगा, उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। తెలుగు में एक वर्ड है, తనను తాను తగ్గించుకున్న వాడిని ఆ దేవుడు హెచ్చిస్తాడు. ద మీనింగ్ ఈస్ ద పర్సన్ హూ మేక్స్ హిమ్సెల్ఫ్ హర్సెల్ఫ్ హంబల్, సర్వీస్ oriented, then the God will raise his life. If you are not service oriented, you will not become successful. My dear students, सक्सेस बनने का एक तरीका है सर्विस करो, सर्विस से ही सक्सेस मिलेगा, सर्विस से ही दिल का सुकून मिलेगा, सर्विस से ही रात भर आराम से सो सकते हैं, सर्विस से ही मतलब इंसान का हेल्थ बनता है। If you don't have the service attitude, God will not bless your life. इसलिए संस्कृत में एक मतलब वंडरफुल पोयम है, सर्वे जना सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्. The meaning of this sloka is Sarve Jana Sukhina means irrespective of any person, everybody shall be happy, shall be comfortable, shall be satisfied. Sarve Santu Niramaya, everyone shall be disease free. Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Bhag Bhavet, किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं आना चाहिए, सभी हैप्पी जीना चाहिए, सभी स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहिए. दिस इज द व्हाट आई से मोटो, दिस इज द बैकबोन ऑफ एनएसएस, दिस इज द बैकबोन ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु इज सर्वेंट और सर्विस ओरिएंटेड. सो मित्रों, आपने वादा किया, इतना लेक्चरर्स को सुना, वो वादा मुझे मालूम है, आई हैव द कॉन्फिडेंस इन यू that वो वादा को आप निभाएंगे. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your motivational speech. Now I would like to invite our Vice Principal, sir, Dr. Lakshaya, sir. అందరికీ నమస్కారం. పెద్దలు ఆచార్య అస్లాం ఫరూక్ సార్ గారికి, అదేవిధంగా ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ రాముల్ సార్, దీప్తి మేడం, అదేవిధంగా ముజఫర్ అలీ గారికి, వేదిక ముందు కూర్చున్నటువంటి ఉపన్యాసకులు, అదేవిధంగా ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్స్కు, విద్యార్థులకు ఎన్ఎస్ఎస్ డే శుభాకాంక్షలు. దాదాపు ఇప్పటి వరకు మాట్లాడినటువంటి ఉపన్యాసకులు చాలా చక్కటి విషయాలు చెప్పడం అనేది జరిగింది. అవన్నీ కూడా మనం 100% మనం ఏకీభవించవలసినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. సరే, ఈ ఎన్ఎస్ఎస్ గాంధీ గారి యొక్క శత జయంతి సందర్భంగా రావడం అనేది జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ అనే శాఖలో ఇది విలీనమై ఉంటుంది. మరి అక్టోబర్ 2 కదా, మరి సెప్టెంబర్ 24 ఎందుకు వచ్చింది అని మనం ఆలోచించినట్లయితే, భారత ప్రభుత్వం పార్లమెంటులో ఆ రోజు చట్టం అనేది చేశారట. అందుకనే ఒక వారం రోజులు ముందుకు రావడం అనేది జరిగింది. అదేవిధంగా ఎన్ఎస్ఎస్ మోటివేషన్, ఇక్కడ చాలా గుండ్రటి చక్రం ఉంటుంది. ఆ చక్రంలోనే ప్రతి మనిషి చేయవలసినటువంటి పనులన్నీ కూడా ఆ చక్రంలోనే ఉన్నాయి. ఆ చక్రము ఒరిస్సాలో ఉన్నటువంటి పూరి జగన్నాథుని యొక్క రథ చక్రమే ఆ గుండ్రటి చక్రం. అది సూర్యునికి ప్రతీక. అందులో ఉండేటటువంటి 8 ఎరుపు రంగులు ఉన్నాయి. అంటే 24 గంటలను ఒక 3 భాగాలు చేసినట్లయితే, పగలు, సాయంత్రం, రాత్రి ఇంటూ 3, 8, 3, 24. అంటే 24 గంటలు ప్రతి వ్యక్తి, ప్రతి విద్యార్థి సమాజం కోసమే
పని చేయాలి. సమాజం కోసం చేయవలసినటువంటి అవసరం లేదు. మనకు మనముగా మన ఎదుగుదలకు మనం పని చేస్తే అదే సమాజ సేవ అవుతుంది. కాబట్టి అనేక విషయాలు చెప్పారు, మన తరగతి గదినే చెప్పారు. చెప్తే ఎవరైనా చేస్తారు. అది ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కాదు. దాన్ని చూసి మనం ఇది ఇక్కడి నుండి తీయాలి అనుకునే ఒక ఆలోచన వచ్చినటువంటి విద్యార్థి నిజమైన ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్. ఒక 26 సంవత్సరాల క్రితం ఇదే కాలేజీలో ఒక కవిరాజ్ అనే ఒక విద్యార్థి ఉండేవాడు. అనంతే సార్ అని ఆయన పిఓ ఉండేవారు. అనేక మంది మీలాంటి విద్యార్థులే ఉండేవారు. ఎక్కడ చెత్త ఉన్నప్పటికీ, ఎక్కడ మొక్కలు ఉన్నప్పటికీ, ఎండిపోయినా సరే, అదేవిధంగా ఎక్కడ చెత్త ఉన్నా సరే చెట్లకు నీళ్లు పోయడం అనేది, క్లాస్ రూమ్లో పేపర్లు తీసేయడం అనేది ఉండేది. ఎవరు చెప్పలే ఆ విద్యార్థికి. అప్పుడు మన రాముల్ సార్ స్టూడెంట్ మరి లేక అప్పటికే లెక్చరర్ అయిందో నాకు తెలియదు, కానీ ఆ విద్యార్థి ఆ విధంగా పనిచేసేటటువంటి వాడు. సరే ఇప్పుడు మేము అవి చేయాలంటే చేయవలసినటువంటి అవసరం లేదు. కాబట్టి మీకు మీరుగా మీ ఆలోచనకు తట్టాలి అంతే తప్ప. ఇప్పుడు ఆ విద్యార్థి లెక్చరర్ అయినది, ఒక మంచి లెక్చరర్ అయ్యాడట. కాబట్టి ఎవరో చెప్తే మనం చేయవలసినటువంటి అవసరం లేదు. మన బుద్ధికి తోచినటువంటి పని మనం చేసుకుంటూ పోవాలి. అదే సోషల్ వర్క్ అవుతుంది. ఆ దిశగా మీరందరూ కృషి చేస్తారని ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ అందరికీ మీకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తూ ముగిస్తున్నాను. సర్వే జన సుఖినో భవంతు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ ఆయన ఒక సూక్తి చెప్తాడు. ఇఫ్ యూ సెల్యూట్ యువర్ డ్యూటీ, ఇఫ్ యూ సెల్యూట్ యువర్ డ్యూటీ, నో నీడ్ టు సెల్యూట్ ఎనీబడి. ఇఫ్ యూ సెల్యూట్ యువర్ డ్యూటీ, no need to salute anybody, but if you pollute your duty, you have to salute everybody. అలా అలాంటి గొప్ప కార్యక్రమం ఇది. మనం సమాజ సేవ చేయాలి, మన పని మనం చేసుకోవాలని చాలా చక్కగా వివరించారు రచయ్య సార్ గారు. వారికి ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు కళాశాల ఎన్ఎస్ఎస్ చైర్పర్సన్ ప్రిన్సిపల్ ప్రొఫెసర్ అస్లం ఫారూక్ సార్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. Good morning to our respected faculty members, NSS officers, dear students. आप सभी को NSS डे का ये जो प्रोग्राम मनाया जा रहा है मुबारक हो। 24 सितंबर जैसे कहा गया, हर साल NSS डे मनाया जाता है। 1969 जो कहा गया ये भी याद रखिए। NSS में जो 3 वर्ड है, फर्स्ट है नेशनल, फिर सर्विस है, फिर स्कीम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशन? ये हमको जरा समझना चाहिए कि वी आर वन नेशन, पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर प्लेस विद कॉमन इंटरेस्ट। ये जो हिंदुस्तान की जो बाउंड्री है, इसके अंदर रहने वाले किसी भी मजहब के लोग, किसी भी कल्चर के लोग, किसी भी जबान बोलने वाले, अमीर हो गरीब हो सब हो, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया और कलेक्टिवली वी आर कॉल्ड वन नेशन। ये जो हिंदुस्तान है जिसे भारत कहा जाता है, इंडिया का। तो हमारे लीडर्स ने महसूस किया कि हमारे जो पब्लिक है, रियाया है, इनको सोशली यूनाइट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी स्कीम का जो वर्ड आखिरी में जो आया है, बीच में सर्विस भी है। तो महसूस किया गया कि हमारे मुल्क के नौजवान एसेट होते हैं, मुल्क का सरमाया होता है। इन नौजवानों के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम शुरू किया जाए ताकि इनके अंदर डिसिप्लिन आए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो समाज है बनता है लोगों के जरिए से। अब हम ये एक हुकूमत हमारी कायम है, डेमोक्रेटिक हुकूमत, अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम की जानिब से। लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो जाता है, हुकूमत के लोग अलग हो जाते हैं, पब्लिक अलग हो जाती है और समझते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है। गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, बल्कि एज ए सिटीजन ऑफ द नेशन वी आर रिस्पांसिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बहुत होती है। तो 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप लोग देख रहे हैं कि 4 दिन पहले हैदराबाद में रात के वक्त बहुत तेज बारिश हुई।
तो मल्लेपल्ली अफजल सागर के एरिया में एक नाला बहता है, उस नाले में गरीब घराने के लोग जो नाले के करीब रह रहे थे, 2 नौजवान पानी में बह गए। पानी में बह गए, उस वक्त से उनको तलाश करना शुरू किया गया, 3 दिन लगे। लोग समझ रहे थे कि गवर्नमेंट रिस्पांसिबिलिटी बॉडीज को ढूंढने के लिए एमसीएच के लोग और उसमें नई नई टेक्नोलॉजी लगाए, ड्रोन के जरिए से भी मालूम करे, पब्लिक में भी अनाउंस करे कि जहां कहीं कोई बॉडी नजर आए तो फौरी इत्तला दीजिए। तो अब वो नेचर का जो फार्मूला है कि पानी के जोर से वो बॉडी नाले से बहते हुए मूसा नदी में गई, मूसा नदी से बहते हुए मूसा नदी आके जो तालाब में जा रही थी, तो ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर के बाद नलगुंडे में कोई मुकाम है, वहां पर वो बॉडी मिली। तो सब लोग जो है फिक्रमंद थे कि इतना डेवलप हम लोग हैं, फिर भी बॉडी को नहीं ढूंढ सकते। तो सब लोगों ने कोशिश की, वहाँ के कारपोरेटर है, जो लोग भी है, गवर्नमेंट के लोग हैं, एमएलए वगैरह है। इसके अलावा आप लोग बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं, तेज बारिश होती है, गाड़ी बह के जा रही, आदमी बह के जा रहा, तो लोग सब कलेक्टिवली क्या करते हैं, उसको बचाने के लिए आगे आते हैं। जब हम ये नहीं देखते कि कौन से मजहब का है, क्या पैसे वाला है, गरीब है, क्या, तो हमारे अंदर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको 24 घंटे और लाइफ तमाम हमारे दिमाग में होना चाहिए। आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस स्टेट में रह रहे हैं, जिस कंट्री में रह रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं। अभी मैं एक एग्जांपल देखा हूँ कि आप लोग अपने अपने राशन कार्ड बनाने के लिए फिक्रमंद, तो बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि जो गरीब लोग होते हैं राशन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें। तो आप जो गाँव में रहते हैं, आपके पास फोन है, आपके पास इंटरनेट है, जैसे बी सेवा के बहुत सारे सेंटर्स हैं, तो आप लोग जो है अगर चाहें कोई एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अपने गांव में, अपने सिटी के अंदर लोगों में बोलिए कि वी आर रेडी टू डू दिस वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट। कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अभी जैसे रामू सर वगैरह बोले कि एनएसएस कैंप में लेके जाते हैं, तो आपको दिमाग में ये नहीं होना कि ऐसा काम करा। मैं खुद पे देखा हूँ कि बच्चे बहुत सारे डिसिप्लिन हो जाते हैं। ये जो हमारे कॉलेज में माइक का बॉक्स है, वो बॉक्स भी एनएसएस कैंप में दिया जाता है। एवरी इवनिंग क्या है, बहुत सारे ड्रामा भी होते हैं, गांव वालों को बुला के जो है ड्रामा किया जाता है। अंधविश्वास जिसे कहते हैं हिंदी में, कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, सुपरस्टिशन। ये अक्सर ये है गांव वालों को जो है, कोई बच्चा बीमार होगा, बुखार होगा, मोशंस हो गए, तो बाद लोगों के दिमाग में आता है कि उसके ऊपर कोई भूत का साया होगा, तो वो लोग उसके पीछे पड़ जाते, जबकि उसको इमीडिएट जो है ग्लूकोज वगैरह देना है। तो इस तरह के मैसेज वाले ड्रामे भी बच्चे हमारे गांव में करते हैं, ताकि गांव वालों को अवेयरनेस हो। तो हमारी सोसाइटी में इश्यूज क्या है, इसको पहचानना है, और इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए एज ए एनएसएस यूनिट आपको काम करना है। हमारे कॉलेज का हर स्टूडेंट एनएसएस का वॉलंटियर समझना चाहिए। आप लोग ये मत समझिए कि कॉलेज में डिवीजन है, कैंप 1 में कौन है, कैंप 2 में कौन है, कैंप 3 में कौन है। ये जितने भी कैंप आपकी जो प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, मैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल आपको एश्योरेंस देता हूँ कि ड्यूरिंग द कैंप हमारे सभी लेक्चरर जो लेडीज सामने बैठे हुए हैं, मैडम अकेले नहीं है, मैडम के साथ हम हैं, बोल के आप लोग भी हाथ उठाओ जरा। कैंप में 2-2 दिन आप लोग मैडम का साथ देंगे। यस बोल के बोलिए। हाँ, मैं खुद भी डेली राउंड कर रहा हूँ। और जो है ये जो गर्ल्स जो भी जाएंगे, अपने पेरेंट्स को बोलिए, प्रीवियस जो लोग जो गए हैं, कि बहुत ही सेफ एटमॉस्फेयर में स्कूल में फैसिलिटी अच्छी है, और गांव वाले बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। और जो लोग गए हैं वो अपना एक्सपीरियंस भी बोलेंगे कि गांव में जाने से हमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। मुजफ्फर साहब वगैरह इससे पहले जो कैंप के रमजान के महीने में भी कैंप किए हैं, रमजान के महीने में रोजा और गांव वाले इंतजार करते हैं कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बच्चे एनएसएस कैंप लेके कब आते हैं, हम उनका वेलकम करेंगे। और हमारे लेक्चरर्स की खास बात क्या है कि बच्चों की हेल्थ का ख्याल रखा जाता है, उनको अच्छा फूड दिया जाता है। अक्सर जो है गवर्नमेंट के प्रोग्रामों में शिकायत होती है कि फूड अच्छा नहीं होता, बल्कि बाज़ाब्ता जो है शमीम भी साथ आते हैं, और आप लोगों में भी जो अच्छा पकाते हैं या कुक होते हैं, आपकी पसंद से जो है फूड बनाया जाता है। और गांव में जैसे सफाई का एक प्रोग्राम है, इसके अलावा भी अवेयरनेस के प्रोग्राम भी एनएसएस के जरिए होते हैं। प्रीति मैडम ने बार-बार जो है आपको
ये कह रहे हैं, ये इंतहाई अफसोस की बात है, सॉरी की बात है मैडम जो बात बोले हैं कि हम लोग जो है देखने में बहुत अच्छे नजर आते हैं, लेकिन हमारा जो काम है, तो मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा कचरा डालते हुए दिखे उसकी फोटो ले लीजिए, जबरदस्ती मत करो, फोटो आजकल गलत भी ले रहे हैं जो रियल में है, या कॉलेज का कोई नुकसान कर रहे बाजू वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के प्रिंसिपल को आके बोलिए, कॉलेज में लेक्चरर्स को बोलिए, हम उनको पनिशमेंट भी देंगे, टीसी देके निकाल देंगे, क्योंकि बहुत सीरियस इश्यू है। मैडम इतना हार्ड वर्क करके कॉलेज में जो है ग्रीनरी को लेके आए हैं, और मैडम जब कल जो काम कर रहे थे बाल बच्चों को बोले तो कोई आगे नहीं आए, तो मैडम मैं जितने भी एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर से आपसे कहूंगा कि एनएसएस के बैनर तले आप लोग काम कीजिए, इन्वॉल्व ऑल द स्टूडेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एनएसएस मेंबर्स। कॉलेज के सभी स्टूडेंट जो है एनएसएस के एक अंडर में अम्ब्रेला में है आप लोग। तो ये जो कॉलेज है जिसे आप लोग डेली प्रोग्राम वगैरह देख रहे हैं, ये बहुत सारे मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो ये मैसेजेस सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि आपके अंदर चेंज लाने के लिए। तो आप लोग एनएसएस को मजबूत बनाइए। कॉलेज से बहुत सारे हम इनोवेटिव प्रोग्राम भी एनएसएस के जरिए कर सकते हैं, जो कम्युनिटी में जाके अवेयरनेस फैलाना। जैसे कोरोना भी आया तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत थी, तो आज भी हमारी सोसाइटी को अवेयरनेस की जरूरत है। गवर्नमेंट के जो नए स्कीम्स हैं इसके बारे में भी अवेयरनेस लाना है, तो आप लोग एनएसएस के बैनर के तहत कर सकते हैं। एक और बात यह है कि 21 to 5 अक्टूबर 21 सितंबर से 5 अक्टूबर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी के तहत दसरा हॉलीडेज हैं। टाइम इज वेरी प्रीशियस। ये आप बस समझिए कि जिंदगी में 15 दिन छुट्टी के, आप अपने टाइम को प्लान कीजिए। कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम सीखिए, एआई लर्निंग के बारे में सीखिए, कोई इनोवेटिव काम कीजिए। कॉलेज के लिए कुछ कर सकते हैं कीजिए, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, कॉलेज डेली खुला रहेगा, तो आप अपने लेक्चर से कांटेक्ट में रहिए। कुछ स्पेशल क्लासेस होना है, ये है कुछ भी हो, लेकिन हॉलीडे का मतलब लीजर नहीं है, बट टू डू समथिंग। एक स्टोरी बोलता हूँ कि मैं कैसे जिंदगी में कोई भी काम होता है वो अच्छाई की जरूरत है। एक आदमी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक, लेकिन टाइम नहीं मिला। एक मरतबा क्या होगा उसके साथ बुरा होगा, क्या होगा, उसको एक्सीडेंट होकर पैर की हड्डी टूट। तो अब उसका जो है प्लास्टर लगा के बेड पे डाल दिए बाद उनके फ्रेंड को मालूम था कि इनको किताबें पढ़ने का शौक, तो उन्होंने जो भी अच्छी अच्छी किताबें हैं लाके गिफ्ट में दिए, बोले कि ये जो पैर का टूटना है तुम्हारे लिए बुरा नहीं बल्कि अच्छा है, अब तुम 15 दिन 40 दिन की किताबें पढ़ो। तो टाइम जो है कभी भी वेस्ट नहीं करना है, उसका सही यूटिलाइजेशन करना है। तो 5 अक्टूबर के बाद इमीडिएट आप लोग कॉलेज को आ जाइए, यहाँ रेगुलर क्लासेस होके ड्यूरिंग द हॉलीडे आपको जो है जो भी एक्टिविटी करना है कीजिए। और मैं एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर्स को बोलूँगा कि सभी बच्चों का एनरोलमेंट कीजिए। हम बाकी के लोग आपके साथ हैं और हमारे कॉलेज के एनएसएस को हम सक्सेस बनाएंगे। तो एनएसएस डे के कामयाब इनेकाद के लिए मैं आप सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। जो भी आप सजेशन दिए और सजेशन को अपन इम्प्लीमेंट करेंगे सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इसके बाद बतकवा प्रोग्राम रहता है नीचे ग्राउंड में, सो सब लोग शामिल हो प्रिंसिपल साहब। ऐसा एनएसएस का मैसेज चल रहा है कि नॉट मी बट यू, और हमारा जो अभी कहा जाएगा नेशन के तौर पे वी आर वन। तो हम जो इंडिया जो है कल्चरली भी हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये जो बच्चे हमारे दशहरे का फेस्टिवल मना रहे हैं, तो आप उनके साथ रहिए, उनको पानी पिलाइए, उनके साथ ग्रुप फोटो लीजिए और उनको दशहरे के विश कीजिए। थैंक यू। Now I would like to invite Muzaffar sir for vote of thanks. देखिए इबादत से जन्नत मिलती, लेकिन खिदमत से खुदा मिलता। हमको जन्नत की जरूरत नहीं है, जन्नत बनाने वाले की जरूरत है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, खिदमत करना है, आवामी खिदमत। अब देखिए मैं अब जो रूम नंबर 13 के पास एक मिनट आपको जाके 5 मिनट ठहरा दो। मैं ये ऑब्जर्व करके मैडम को 3 से 4 मिनट बोला, मैडम आप कैसा बैठ रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा वाइस आप लोग प्लीज सीरियस हो ये बात पे, क्योंकि आप लोग एक सिर्फ 5 मिनट जाके ठहरो,
कि आप वहाँ पे बैठ सकते क्या, आप बैठ सकते क्या पैंट में। मैडम सुबह से शाम तक वहाँ पे बैठते और इतनी ग्रीनरी रहने के बावजूद, ऑक्सीजन एरिया रहने के बावजूद इतनी स्मेल आती वहाँ से आपको, ठीक है ना। तो आप हम हमारे घर का वॉशरूम जैसा है, ये हमारे कॉलेज का वॉशरूम है, हमारा वॉशरूम थोड़ा सा, क्योंकि उनकी हेल्थ के ऊपर असर होता, उनका हेल्थ के बाद में उनका हेल्थ अच्छा होता है, बच्चों के ऊपर असर होता है, समझ रहे ना। थोड़ी बात की सीरियस ले लो। तो मैं इसके साथ साथ आज जो हम एनएसएस डे प्रोग्राम सेलिब्रेट करे थे, तो इसका सबसे पहले मैं जो एनएसएस चेयरमैन प्रिंसिपल सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, वाइस प्रिंसिपल सर, मूर्ति साहब और तमाम स्टाफ मेंबर्स और तलबा का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह से इस प्रोग्राम का अख्ताम होने वाला है।